اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما عملا۔ میں زرفشاں خان مومنات قرآن اکیڈمی کی طالبہ ہوں۔ آپ سب کے ساتھ اللہ اکبر کی دعوت لے کر آئی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آج یہاں ایک بہت خوبصورت مقصد کے لیے چنا ہے کہ ہم اپنے رب کی بڑائی بہت پیار سے ساتھ آپ سب تک پہنچائیں۔ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ دعوت دینا صرف میرے رب کی رضا چاہنا، ہمیں میرے رب کی رضا چاہنا ہے۔ میرے اس بولنے پہ یہاں جتنے بھی ہیں اور جو سنیں گے، اللہ ان سب کے دلوں تک اللہ کی بڑائی کو، محبت کو ان کے دلوں تک اتارنا آسان کر دے۔ اے میرے رب، ہم اپنی زندگی کا یہ وقت آپ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ آپ کی محبت میں، آپ کی رضا کے لیے میرے اس پہلے قدم کو قبول فرمائیے اور ایسی دعوتوں کا مجھے بار بار مومنات قرآن اکیڈمی کے موقع دیجیے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا لفظی معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر صرف زبان کا لفظ نہیں بلکہ دل سے اللہ کے نزدیک بننے کا سفر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اگر صرف زبان کا لفظ بلکہ دل کی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر صرف زبان کا لفظ نہیں بلکہ دل کی حقیقت ہے، اور واقعی اگر ہم دل سے نماز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر تو بہت دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ زندگی میں پریشانی اور مشکل میں ہارا ہوا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے بے شک نکلتا ہے اللہ اکبر۔ اور آج ہم یہ اللہ اکبر کی بڑائی کی فضیلت کو سمجھیں گے۔ جو نماز ہمارے رب نے ہمیں تحفے میں دی ہے، اس رب کو پہلے شکر ادا کریں گے اور پھر نماز پڑھنے کے فائدے بیان کریں گے جو ہماری میم نے اس مومنات میں نماز کا جو کورس ہے اس میں جو ہم کو سکھایا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کے فائدے کیا ہیں، نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، کبھی معاف نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے آپ۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کی بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، بے شک اللہ بہت بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ کا ہر نام اپنی جگہ بہت پرفیکٹ ہے، یا رزاق، یا کریم، یا رحیم، یا رحمان، یہ سب ایک اپنی جگہ بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کا نام بہت اعلیٰ ہے، کیا ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی بندی ہیں؟ نہیں، کبھی ہاں کبھی نہیں۔ اپنے ایمان کے حساب سے ہم ہر وقت اللہ کی ایک اچھی بندی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا لیول بہت گرا ہوا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ بڑے ہیں اور اللہ کی بڑائی
हर तरफ देखने को मिलती है। हर चीज को बनाने वाले अल्लाह हैं। एक पत्ता जो छोटा छोटा सा एक पत्ता भी कोई इंसान नहीं बना सकता। बनाना तो बहुत दूर की चीज, हिला भी नहीं सकता। अगर अल्लाह ही इजाजत देंगे तो हवा से पत्ता हिलेगा, वरना ऐसे ही बना रहेगा। ये जमीन आसमान, हवा पानी और पहाड़, और ये जो छत आसमान जो है वो छत है, हमारी छत भी है, सब इस रब का ही बनाया हुआ है। और समुंदर की लहरें जो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने रोक रखी हैं, अगर समुंदर की लहरें भड़क उठें तो कोई है जो उसको रोक सके? बिल्कुल नहीं। अगर ये आसमान जो जोर जोर से गरजने लगे तो कोई है जो उसकी गरज को रोक सके? फिर कहें इस पर अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला से बड़ा कोई नहीं है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुश्किल वक्त में होते थे तो अल्लाह की अजमत को याद करते थे और कहते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम सब भी कोई मुश्किल में हो तो कहें अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये मुश्किल वक्त का हल भी है और एक सुन्नत भी है। अल्लाह अकबर एक लफ्ज नहीं, बल्कि दिल की गहराई की उन तमाम चीजों का इजहार मोहब्बत है और दिल का सुकून है। ईद में हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह को उनकी उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो रमजान के रोजे, नमाज की पाबंदी, तरावी की तौफीक जैसी नेमत अता की। ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब जब भी हम अल्लाह अकबर कहें तो हमें भरोसा हो कि मेरा अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत बड़ा है, और हर छोटी छोटी बातों पर बच्चों को भी आदत डालें अल्लाह अकबर कहने की। बच्चों को भी अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अभी से बच्चों को आदत डाल देंगे तो वो भी बड़े हो के दाई का काम करेंगे इंशाअल्लाह। वो भी अपनी जिंदगी में इसको उतारेंगे, अल्लाह अकबर की अहमियत को समझेंगे। जब खुशी हो तो भी कहें अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। या अल्लाह हमें ऐसा दिल दे कि हम ताउम्र अल्लाह अकबर को समझ सकें। इसके साथ हमारी मैम जो कि जो तमाम जो कि एक इल्म का समुंदर है, और तमाम मोमिनात की टीम भी इस अमल को दिल से समझे और हमारे घर वालों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। खास तौर पर हम अल्लाह अकबर नमाज में महसूस तो करते हैं, क्योंकि हमारा पहला हिसाब तो नमाज का ही होगा। क्योंकि नमाज तो वही कबूल की जाएगी जो खुशू खुजू के साथ होगी। नमाज में सजदा, अच्छे से सजदा करना, अच्छे से रुकू करना, और नमाज में चोरी ना करना, नमाज वक्त पर पढ़ना, नमाज कजा ना होने देना। नमाज कजा हो गई है तो उसका भी हिसाब होगा। अल्लाह अकबर को हम अपनी जिंदगी की एक तस्बीह बना लें, और कोई गम आए तो कहें अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई तकलीफ पहुंचे तो कहें अल्लाह अकबर। कभी गुस्सा आ जाए तो कहें अल्लाह अकबर। कभी चोट लग जाए तो कहें अल्लाह अकबर। किसी की बात से दिल टूट जाए तो कहें अल्लाह अकबर। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाए तो कहें अल्लाह अकबर। आसमान को देखें, इस अल्लाह की नेमत है, उसको देखें तो कहें अल्लाह अकबर। कोई भी नेमत अल्लाह की देखें तो कहें अल्लाह अकबर। हमारे दुखों से भी बड़े हैं हमारे अल्लाह, हमारी हर परेशानी से भी बड़े हैं। तो हमें हर घबराहट के वक्त, हर फिक्र के वक्त, कोई मुश्किल से आसानी मिलते वक्त कहें अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। अल्लाह कितने अजीम है,
अल्लाह सुब्हान व ताला आप सबसे बड़े हैं और हम आपकी कमजोर अदना सी बंदी हैं। हमें मालूम नहीं था कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या प्लान किया है। हम तो जो है अल्लाह ने ही हमारे हमारे लिए प्लान किया होगा, जो हम इस मोमिनात से जुड़े और आगे इसको आगे चला रहे हैं, कर रहे हैं। तौफीक अल्लाह ही दे रहा है, अल्लाह ही ने हमको तौफीक दी है कि हम अपना वक्त निकाल के इस मोमिनात कुरान के सीखने के, ये सिखाने के लिए आए हैं। हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सिर्फ हमको एक तालिबा बनाकर नहीं, बल्कि दीन का दाई बनाया है। ये भी हमारे अल्लाह सुब्हान व ताला का बहुत शुक्र है। हमारी पहले की जिंदगी हम अपनी पहले की जिंदगी को देखें, बहुत खराब, बहुत गुनाहों से भरी हुई थी। जब से मैंने ये मोमिनात कुरान अकादमी का कोर्स ज्वाइन किया है, और मेरी मैम जुबिश, जो कि एक इल्म का समुंदर है, हम सबको सीधे रास्ते पे चला के जन्नत के रास्ते पे ले जाना चाहती, उनकी तो हमेशा कोशिश रही है और रहती है कि हमारी सारी तालिबा जितनी हमसे जुड़ती हैं उनको हम जन्नत का रास्ता दिखा दें, उनको इल्म के इस इल्म का ऐसा दरिया दे दें, इसको दे दें, इल्म इतना दे दें कि वो भी अपने घरों को जो है सबको इल्म बांटती फिरे और इल्म देने वाली बन जाए। जैसे वो हमको इल्म देती हैं, वैसे ये चाहती हैं कि हम सब भी बहुत इल्म बांटने वाले दीन के दाई बन जाएं। और मेरी इस एकेडमी में रहकर हमने नमाज की हकीकत, दिलों से अल्लाह की अजमत पाकी का एहसास हुआ, और हम आज नमाज को अच्छे से समझ कर पढ़ने वाले हो गए हैं और अल्लाह के करीब हो रहे हैं। ये मोमिनात कुरान अकादमी की ही मेहनत है का नतीजा है कि हम इस छोटे से लफ्ज को अच्छे से समझ सकें। इस कोर्स के जरिए हमने जाना कि नमाज हमारे लिए कितनी जरूरी है, और नमाज का अव्वल वक्त पर पढ़ना भी कितना जरूरी है। मैम की कोशिश की वजह से ही आज हम नमाज के अस्कार को, एक एक अस्कार को अच्छी तरह से समझ सके हैं और उसको आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिल से तस्लीम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुब्हान व ताला आप सबका यहाँ आना, आपका कीमती वक्त देना, सुकून के साथ सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपनी रहमत का दाई बना दे। अल्लाह सुब्हान व ताला हमें बेहतरीन हिदायत दे। अल्लाह हम सबको अपने करीब कर दे। मेरा बोलना, मेरा समझना और इस दावत को अल्लाह मेरे लिए सदका जारिया बना दे। आज की मेरी ये दावत खालिस मेरे रब के लिए है। ऐ मेरे रब, इसे कबूल फरमाइए। मेरे रब इसे कबूल फरमाइए। मेरे रब इसे कबूल फरमाइए। ए अल्लाह करीम, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह ए अल्लाह पाक, परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनके कर्ज जल्दी से अदा कर दीजिए। ए रब, शैतान की शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। है परवरदिगार आलम, मैं तुझसे मांगना नहीं, मुझे तुझसे मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, और जो मांगा से रह गया है वो भी अता फरमा दीजिए। अ, हमारी दुआएं अपने रहमत से, अपने करम से कबूल फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन।
جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔